Hey guys, hope you are doing really well. और कैसे चल रहा है कॉलेज? होप अच्छा ही चल रहा होगा, वैसे भी ऑनलाइन चल रहा है अभी तो। बढ़िया है। नए लोग, नया माहौल, अभी तो मिल ही नहीं पाया हूँ ज़्यादा। बाकी तो ठीक है, अभी खुलने ही वाले हैं कुछ दिन में। बढ़िया फिर। चलो, तो अभी जब तुम लोग आए हो तो कॉलेज की स्टार्टिंग में तो बहुत सारे क्लब से इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे, लाइक कल्चरल क्लब, फोटोग्राफी क्लब, आर्ट क्लब। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हु वी आर, how we are different from others, and why to join us. So let me introduce our team, that is Team GS Racers. We are the official technical team of our college, in which we design and manufacture our vehicle according to the event in which we are participating. These events are organized by SAE India, that is Society of Automotive Engineers. लाइक तुम जो भी अपने पूरे इंजीनियरिंग के सिलेबस में सीखोगे, थ्योरी में सीखोगे, बस उसी चीज का रियल लाइफ एप्लीकेशन तुम्हें यहाँ करने को मिलेगा. नॉट ओनली दैट, टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और बहुत सारी चीजें यहाँ पर तुम्हारी इवॉल्व होंगी. तो there are three main segments of our team, that is Baha segment, Supra segment, and FE cycle segment. The Baha segment designs all-terrain vehicle, and the Supra segment designs the formula vehicle, and FE cycle segment designs the hybrid vehicle. Now, so here is the glimpse of our team. So now Ubaid will describe you about the departments divided in our team. Hi, good evening, guys and girls. My name is Ubaid Khan, and I am a student of SGS ITS Indore and a member of Team GS Racers. So, now that you've been introduced to the ins and outs of the Team GS Racers, I would like to state the building blocks of it. So, if I ask you like a really general question, how would your life be without one of your main organs? Your answer would be pretty obvious. That is, it would be pretty miserable. So, similarly, without even one of our primary departments, primary and secondary departments, there would be no vehicle to showcase or perform. So our team is basically divided into two sets: the primary departments and the secondary departments. The primary ones include steering, suspension, brakes, transmission, roll cage, electronics and engine, and aerodynamics. The majority of which you might have heard of already, but just to be clear and to be on the same page, I would like to brief a little bit about each one of these. But don't worry, I won't bore you with the technicalities, of course. You're here to have fun. You are the first year junior children after all. But these are just general knowledge that should be taught in an engineering college in general. So, talking about the first department, which is one of our major ones, is steering. Steering is basically the link between the driver and the vehicle. It controls the directional movement of the vehicle. Secondly, please, the next slide. Suspension. Suspension is used to transfer loads from the main body of the vehicle to the wheels. Brakes.
Braking system in a vehicle serves the basic purpose of retarding a vehicle in motion. Moving on to the next one, transmission. Transmission basically looks after the engine aspect of the entire vehicle. So it transmits engine's limited power to the tires efficiently. Roll cage. So here's one point that you should know for like a general life. The roll cage chassis houses all the components of the vehicle. Many people confuse the word roll cage and chassis when they both are the same, one and the same thing. Electronics and engine. An internal combustion engine or IC engine is used in our vehicles. Sensors such as TPS, GPS, maps, O2 sensors, etc. are installed in the engine which are connected with ECU, electronic control unit, through harness, a web of wires. Don't get confused by the technicality and the industry jargon words here. The harness is basically a web of wires. You could create it at your own home if you're lazy enough. Yes. And lastly, the aerodynamics, which is the art of studying and observing the interaction between the moving air and your vehicle. Right. So before the execution comes the planning, right? So how do we plan such complex processes will now be explained by Mr. Abbas Kapadia, sir. So hello everyone, this is Abbas Kapadia from Team GS Racers. So अभी तक आपने देखा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं अपनी व्हीकल में या कौन से मेजर डिपार्टमेंट्स हैं. The each and every single component is manufactured and designed by our team members, and from planning to a complete vehicle there are many phases in between. The first one being designing of CAD models, then analysis and simulation, then the manufacturing part, and finally the assembly. Next, the first phase of every planning is the designing phase. The computer aided designs or CADs of each component is prepared on some softwares. The SolidWorks, AutoCAD and Creo, these are some of the industry level softwares which we use in our team to design each and every part. The designing is done basically by keeping in mind the rules provided for the event, and we apply all the engineering concepts in our designs. These softwares are industry level, and all the major companies, automobile companies, use these softwares in designing their vehicles. Even if you don't know, Lamborghini designs its car in SolidWorks. So these are some of the CAD models of our vehicle which we design on SolidWorks and Creo. Next, after the design of each component is completed, then comes the analysis part. We have to make sure that each component is designed up to the mark of our level, and each component is safe enough to use in our vehicle. Because if we use failure parts in our vehicle, then it could be very dangerous. So there are mainly two types of analysis: the finite element analysis and computational fluid dynamics (FEA) and CFD. You will learn about this. Analysis in your further studies. But the main advantage of being in Team GS Racers, that you're seeing these softwares like SolidWorks, ANSYS, ADAMS, HyperWorks. These softwares are taught in 4 years of your engineering life. But if you are with Team GS Racers, we study these softwares in our first year. Not only study, we use these softwares practically, and we analyze each and everything, each concept of our engineering life in this while we design and analyze our vehicle components. So analysis is mainly done on ANSYS, HyperWorks and ADAMS. Next, these are the snaps of our roll cage frames. These are the snaps of our roll cage frames, the respective of Team Baha and Team Supra. These frames, in this analysis, the stress distribution on each pipe of the frame is shown. Next, the first pick is of the CFD analysis. This is done to check the aerodynamic velocity profile in our Formula vehicle. The second pick is of the ADAMS software, which we use to simulate our suspension department. Next, after all the validation is done through analysis, and we improvise our CADs,
Then comes the main part, that is manufacturing. Manufacturing includes all the processes starting from the material selection to the final assembly of the vehicle. The some of the basic processes which we do in our own workshop are cutting, machining, grinding, welding, and then the final assembly. These all processes are done by our team members in our workshop. These are some of the snaps of our processes. The first one being of cutting, then grooving, then machining on a central lathe machine, and the final one is of welding. Next. When all the pipes and the frame structure is welded together, the final frame structure looks something like this. This is the roll cage of Team Baha and Team Supra respectively. Next. After the frame is completed, all the components that the departments which you have heard earlier, all the components of these departments like steering, wheels, engine and all other components are assembled together to complete our vehicle. These two are the complete vehicle through which we race on our road. Aren't these things beautiful? Now, if these things look so much amazing in photos, the feeling of this working and running on a road is something unimaginable. So if you are with Team GS Racers, you will be feeling these amazing things. Now we will like to introduce our separate events among you. And I would like to enlighten you with our journey through the Baha SAE competition. Baha SAE is an intercollegiate design competition run by the Society of Automotive Engineers. Teams of students from all over the world compete on the convention-breaking grounds of 3 different countries to get their work judged under 3 various categories and determine the last vehicle running, standing, roaring, and fighting. Just like the SGSIT's glorious journey spanning decades, our team has been designing, manufacturing, innovating, and refining for the past 12 years in the arena of Baha SAE on both national and international extents. The first round of Baha event is the virtual round, where we present our virtual model to a panel of judges. Those who qualify in this round are permitted to participate in the dynamic events. We design and fabricate an all-terrain vehicle that holds the ability to drive over rough and unconquerable terrain while suffering minimal damage, and building one takes both an intimate knowledge of engineering. In 2012, we got a chance to conquer the international grounds and secured the second position in the virtual round. In 2014, we were crowned with the first position nationally in the Baha SAE India. This fuels our motivation to continue the outstanding legacy of Team GS Racers and pass it on to worthy candidates through every year. I'll now hand over to my next teammate. Thank you, Kritika. Good evening, juniors. एक बाहा एक सेगमेंट है, उसके अलावा एक फार्मूला सेगमेंट भी है टीम जीएस रेसर्स का, जिसको फार्मूला सेगमेंट स्पेशली फार्मूला स्टूडेंट के जो इवेंट्स होते हैं उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हाँ, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फार्मूला स्टूडेंट कम्युनिटी. ये कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, इसमें कई सारे स्टूडेंट्स है, कॉलेजेस से जुड़े हुए हैं. इसमें आपको इस फार्मूला टीम में जुड़ने से आपको इनका कनेक्टिविटी का आपको मौका मिलेगा. ये जो कम्युनिटी है ये कई सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाती है जिसमें अपना स्टूडेंट्स अपने रियल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज को अप्लाई करते हैं. ये मौका आपको भी मिलेगा अगर आप टीम में ज्वाइन करेंगे. और इसमें हम मेनली फार्मूला स्टाइल कार, रेसिंग कार डिजाइन करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ अब फार्मूला स्टूडेंट कई सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करता है. इसी में एक इंडिया में जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, हमारी टीम पार्टिसिपेट करती है, उस इवेंट का नाम है सुप्रा SAE इंडिया. ये एक स्टूडेंट डिजाइन इवेंट, स्टूडेंट डिजाइन कंपटीशन इवेंट है जो मेनली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है. और हम भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और आप भी हो, और आपके सपने भी बहुत बड़े हैं. तो उसको साकार करने के लिए ये जो चीज है इवेंट, आपको इसमें रियल इंजीनियरिंग लगाने का बहुत अच्छा मौका आपको इसमें मिलेगा.
और ये जो इवेंट है इसमें आपको जो रूल बुक होती है उस हिसाब से पूरा गाड़ी डिजाइन करना पड़ता है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे जो मेरे दोस्तों ने प्रोसेसेस बताई वो करने में भी बहुत मजा आता है। और आप आगे भी देखोगे कि आपको जो कैसे हमारी टीम मजे करती है, कैसे हम चीज सीखते सीखते एंजॉय करते हैं। उसके बाद ये जो मेनली सुपर ऐसे इवेंट है 5 दिन का इवेंट होता है। इसमें कुछ स्टैटिक कुछ डायनामिक इवेंट होता है। स्टैटिक इवेंट मतलब जिसमें गाड़ी खड़ी है और आपको आपका डाटा रिप्रेजेंट करना, डायनामिक में आपकी गाड़ी की एबिलिटी रिप्रेजेंट करना है। और ये जो इवेंट है ये बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट नोएडा पे होता है। और जो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करता है उसको यहाँ जाने का मौका मिलता है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको एक F1 ट्रैक पे जाने का मौका मिलेगा और कई सारी चीज सीखने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और इसमें जो मेनली 2 इवेंट्स हैं, एक स्टैटिक इवेंट होता है, एक डायनामिक इवेंट होता है। और स्टैटिक इवेंट में पहला टेक्निकल इंस्पेक्शन होता है। टेक्निकल इंस्पेक्शन इवेंट जो है उसमें आपको आपकी गाड़ी को टेक्निकली और रूल बुक के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से आपकी गाड़ी कितनी परफेक्ट है, कितनी मतलब उस पे उसको देखते हुए बनी है, उसका पूरा एनालिसिस होता है। उसके बाद फिर बिजनेस लॉजिक केस होता है। इसमें आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। बोलते हैं इंजीनियरिंग में बिजनेस नहीं मिलेगा, आप बिजनेस लॉजिक प्लान में आओ, बहुत कुछ बिजनेस के बारे में मिलेगा। बिजनेस लॉजिक प्लान में आपको गाड़ी को कैसे आप उसको इंडस्ट्री में सेटअप करोगे, आपको वो पूरा बताना है। कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग इवेंट, इसमें आपको गाड़ी का एक एक पार्ट, एक स्क्रू से लेके आपने कैसे मतलब कितने में खरीदा, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, इसमें आपको बताना पड़ता है कि आपकी कौन कौन सी मशीनिंग यूज करी। ये आप इंजीनियरिंग के 4 साल में हो सकता है ना सीख पाओ, मगर यहाँ 1 या 2 साल में आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद आपको एक प्रेजेंटेशन इवेंट है। इसमें आपको हर एक डिजाइन को आपको वैलिडेट करना रहेगा। आप पढ़ोगे, चीजें पढ़ोगे, उससे डिजाइन करोगे, उसको वहां जाके वैलिडेट करवाओ, जजेस को समझाओ और ठीक उसके इन सबकी स्कोरिंग रहती है इवेंट्स की। फिर होता है डायनामिक इवेंट। डायनामिक इवेंट्स में कुछ एक्सेलरेशन इवेंट, एक्सेलरेशन नाम से पता चल रहा है, इसमें होता है एक ट्रैक होता है, आपको सबसे फास्टेस्ट एक्सेलरेट करवाना पड़ता है। और एक सबसे बड़ी बात कि अभी तक की फॉर फास्टेस्ट एक्सेलरेशन वाली कार एक फॉर्मूला स्टूडेंट कार है, ना कि एक F1 की कार, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होती है, इसका एक्सेलरेशन अच्छा होता है। फिर उसके बाद स्किड पैड होता है। स्किड पैड में एक 8 शेप का होता है, उसके अंदर आपको गाड़ी चलाना पड़ती है और आपको आपका डायनामिक स्ट्रेंथ आपकी गाड़ी की दिखाना पड़ती है। उसके बाद एक ऑटोक्रॉस होता है, रैंडम सा इवेंट होता है, एक एंड्योरेंस। एंड्योरेंस बहुत अच्छा टेस्ट है। 5 दिन के इवेंट में ये टेस्ट होता है। 22 किलोमीटर की एक रेस होती है, उसमें आपकी गाड़ी पूरा कंटिन्यूस बिना रुके आपकी गाड़ी को चलाना पड़ता है। ये बहुत अच्छी चीज है इसमें। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, और ये सब इवेंट तो ठीक है, आप पार्टिसिपेट करोगे, आपको सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा कुछ मिलेगा सीखने को। फिर और जो हमारी टीम जो मेनली आज हम प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी टीम का जो पास्ट रहा है वो भी बहुत अच्छा पास्ट रहा है। फॉर जो अभी जो फॉर्मूला स्टूडेंट कम्युनिटी बताया, इसमें एक 2013 में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था फॉर्मूला स्टूडेंट जर्मनी में। उसमें हमारी रेवंता करके जो कार थी उसने बहुत अच्छा किया था और ये एमपी की पहली कार थी। और एफएसजी में मतलब फॉर्मूला स्टूडेंट जर्मनी में इंडिया से जाने वाली टॉप 6 टीम में ये थी। उसके बाद 2014 में भी हमारा आरजव अच्छा रहा, मोस्ट कॉम्पैक्ट व्हीकल था ये। फिर 2015 में शौर्या, ये गाड़ी कॉस्ट इवेंट में फर्स्ट प्राइज लाई थी 2015 में, और ये बहुत अच्छी गाड़ी थी उस लेवल तक। फिर 2017 में हम फॉर्मूला स्टूडेंट का ऑर्गेनाइज इवेंट फॉर्मूला भारत, उसमें हमारी गाड़ी शौर्य वर्जन 2 लेके गए थे हमारे सीनियर्स, और वो उसकी जो सस्पेंशन ज्योमेट्री थी बहुत ज्यादा उसको जजेस ने अप्रिशिएट किया था। फिर रिसेंटली जो 2019 में था, हमारी गाड़ी गई थी GSR 6। इस गाड़ी ने पूरा टेक्निकल इंस्पेक्शन क्लियर किया था, इसने टिल टेस्ट, स्टैटिक इवेंट्स सारे क्लियर किए थे, इसने 11th रैंक कॉस्ट प्रेजेंटेशन में लिया था ये, और 32 जो ओवरऑल रैंक की थी 120 टीम्स में। नेक्स्ट स्लाइड। और इसमें मेनली जो आप इस इवेंट, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टीम में आओ, टीम में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज, इतनी सारी प्रोसेसेस, इतने सारे मशीनिंग प्रोसेस, आपको इतना सारा पढ़ने को मिलेगा जो हो सकता है आप इंजीनियरिंग के 4 साल में कभी ना सीख पाओ। नाउ लेट्स सी सम फन मोमेंट्स ऑफ आवर टीम, जिसको ज्वाइन करने में आपको ये भी मिलेगा और पढ़ाई भी मिलेगी। ये हमारा जो मतलब वॉयज हमारी जर्नी है, ये एक यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ एक खाली रोल केज रखा है, इससे लेके यहाँ तक की जर्नी, इसके अंदर कई सारी चीजें होती, आप आगे जाके देखोगे। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, और ये भी देखो एक जर्नी, एक शेड पे जो मजे हैं उससे लेके इवेंट तक पूरी टीम को साथ में लेके चलना, ये पूरी मेहनत उसके पीछे। और ये जो पिक्चर है हमारी टीम की बेसिकली 2 एक्सट्रीम एंड्स बता रहा है। एक जो विंटर में हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है उसमें,
उसमें जो मेमोरीज होती है ना, लाइक ट्रस्ट मी, एक तो वार्मथ ऑफ जो आग जलाते हैं उसकी वार्मथ, और फिर एक जो ग्रूविंग करते टाइम की जो हीट मिलती है वो पूरी ठंड के पूरा कवर कर देती है। एंड द सेकंड पिक्चर जिसमें कि हमें गर्मी में भागना होता है इवेंट पे ऑन ग्राउंड, अपनी गाड़ी को इधर से उधर ले जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन टीम अपनी अलग खड़ी हुई है एक जगह पे प्रेजेंटेशन देने के लिए, टेस्टिंग टीम एक अलग जगह पे खड़ी हुई है गाड़ी को टेस्ट कराने के लिए, वहाँ के बाहर के ऑफिसर से बात कर रही है, डिजाइन प्रेजेंटेशन टीम वहाँ पे जजेस के साथ पैनल में जूझ रही है कि हमारा नंबर आ जाए जल्दी से। सो ये दो एक्सट्रीम एंड्स बता रहा है कंपटीशन के, जिसमें कि बीच में इतनी ज्यादा चीजें एंड प्रोसेसेस होती हैं कि आई कांट इवन एक्सप्लेन दैट इन वर्ड्स। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ ट्रिप्स हैं, कंटिन्यू। ये पोस्ट इवेंट के बाद की पूरी ट्रिप्स हैं, पूरी टीम इकट्ठी गई थी, पूरा फन ट्रिप थी, बिल्कुल बहुत मजा आया था। और मतलब पढ़ाई के अलावा हम और भी चीजें करते हैं तो वो हम पूरा दिखा रहे हैं यहाँ पे। और ये एलुमनाई मीट्स का पार्ट है। सो एलुमनाई मीट्स बेसिकली अलग अलग सिटीज में होती है जहाँ पे हमारी एक मैनेजमेंट टीम को जाकर प्रेजेंटेशंस देनी होती है। हर बिजनेस फर्म टीम में फंडिंग लगती है, ऑब्वियसली पैसा इज इम्पोर्टेंट। सो मैनेजमेंट टीम लुक्स आफ्टर दैट पार्ट, फंडिंग का। एंड एक बहुत ही मेजर सोर्स उस फंडिंग का होता है एलुमनाई मीट, जो कि डिफरेंट सिटीज में होता है और हमें वहां जाके अपने प्रेजेंटेशंस देने होते हैं, वो बेसिकली मैनेजमेंट टीम ही जाती है। सो इट्स नॉट लाइक कि पूरा जो बाहा और सुप्रा क्लब टीम्स है वो सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट्स के लिए ही है, दे आल्सो डू कंटेन मैनेजरियल साइंस वाला पार्ट। सो इफ देयर आर एनी मैनेजमेंट एस्पिरेंट यू कुड अप्लाई फॉर दिस एज वेल। और एक पार्ट मैं भी ऐड करना चाहूंगा, ये जो फैमिली है ये ट्रू फैमिली। आप कॉलेज में कभी भी साथ में रहोगे, आप इस फैमिली के साथ रहोगे, ये फैमिली आपको सिखाएगी भी और आपका साथ भी देगी पूरे समय। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये भी हम कई जगह घूमने जाते हैं, जैसे पूरी टीम की टीम साथ में जाती है, देखो पीछे कहीं गई है तो पूरी टीम गई है, शेड में है तो पूरी टीम है, और बहुत कुछ सीखा भी है। नेक्स्ट। आपको फर्स्ट ईयर में पूरा एक आपका ग्रुप मिल जाएगा जो आप बाद मतलब आप पूरा 4th ईयर तक ही चलने वाला है और उसके बाद तक ही। और ये ब्रेक टाइम में जितना भी हमारा मोमेंट्स रहते हैं वो हैं, लाइक गेम्स चल रहे हैं, गेम्स पूरे क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल सब। यहाँ पे सबके बर्थडे वाले तो सीन ही अलग रहते हैं। एंड द सेकंड पिक्चर डिपिक्ट्स हमारा नाइट टाइम, जिस बाय द वे और किसी क्लब में नाइट टाइम आई डोंट थिंक अलाउ होता है। सो हमें नाइट स्टे भी कभी कभी करना होता है ठंड में। सो उसमें ही सबसे ज्यादा मेमोरीज बनती हैं, टू बी ऑनेस्ट। इट्स नॉट कंपल्सरी ऑल्दो, बट जो लोग, आई डोंट थिंक कोई भी इसके लिए मना करता है। एवरीवन अप्लाइज फॉर द नाइट टाइम नाइट स्टेज। द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और एक और बड़ी चीज कि आप ठीक है आप सीखते हैं, आपको कॉलेज की पढ़ाई भी चलाना है साथ में, पढ़ाई का माहौल। और एक और चीज आप सॉफ्टवेयर जो सीखते हैं, जैसे कि मेरे फ्रेंड ने बताया कि आपको कई सारे डिजाइन सॉफ्टवेयर, एनालिसिस सॉफ्टवेयर, ये सब सीखने का मौका आपको बहुत डीपली मिलता है। प्रैक्टिकली जो चीज आप करते हो, आप जो एनालिसिस करोगे, जो वैलिडेट करोगे, आप उसको वहीं का वहीं गाड़ी पे लगाना है, गाड़ी का टेस्टिंग करना है। अगर वो टूटेगा तो आपको फिर से उस चीज को उस पर बार बार दिमाग लगाना है, और उसके साथ साथ कॉलेज की पढ़ाई भी कंटिन्यू रखना है। तो ऐसा नहीं है कि आप टीम में आ जाओगे तो आपकी कॉलेज की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। ये बहुत अच्छा, मतलब दूसरे बच्चों से आप आगे रहोगे, ये बात है, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई भी करोगे, आप टीम का काम भी करोगे। इसमें बहुत कुछ आप, मतलब अच्छी चीज है, आप ज्वाइन करो, मैं तो आपको फोर्स करूंगा। तो ये हमारे डोमिनोज के पिज्जा एस्केपेड्स हैं, क्योंकि हम बीच बीच में ब्रेक लेने के लिए जस्ट टू वेंट आवर हंगर जाते थे। द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो नाउ मतलब अब हम आपको बता रहे हैं वीडियो के थ्रू कि कैसे फॉर्मूला स्टूडेंट की लाइफ और एक नॉर्मल कॉलेज पर्सन की लाइफ में डिफरेंस होता है। वॉच इट। सो आपने देखा कि दोनों ही टीम्स में, दोनों ही सेगमेंट्स में, बाहा और सुप्रा में काफी एक्सपोजर मिलता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इफ यू जॉइन ईदर ऑफ दीज सेगमेंट्स, यू विल बी गारंटीड कि आपको टेक्निकल, मैनेजेरियल, कम्युनिकेशनल और जस्ट पर्सनालिटी वाइज डेवलपमेंट ऑब्वियसली मिलेगा ही।
बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ नेशनल लेवल के एक्सपोजर की बात नहीं कर रहे, बिकॉज इन 2012 जो बाहर सेगमेंट है, एटीवी सेगमेंट, द ऑल टेरेन व्हीकल सेक्शन ऑफ टीम जीएस रेसर्स, दे वेंट इंटरनेशनल विद द हेल्प ऑफ देयर एलुमनाइज, जो में उनके एलुमनाइज ने लॉजिस्टिक्स का देखा था एंड मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस, तो एंड देयर दे रैंक्ड सेकंड इन द डिजाइन इवेंट. सो ऐसे इंटरनेशनल एक्सपोजर्स के भी चांसेस हैं, एंड राइट नाउ GSITs के alumni are on some of the top positions. Like for example, one of the board members of Rapido is from GSITs. So when you get to connect with such high personalities, there are chances of future opportunities for you, and in both the segments, the ATV and the Supra. Kuldeep, you wanted to say something? अब आपकी भी इच्छा होगी कि यार कॉलेज तो 4 साल चलेगा ही चलेगा, तो कुछ एक्स्ट्रा कर ही लेते हैं. सही बता रहे हैं, कॉलेज की लाइफ में कुछ नहीं है. 4 साल पढ़ोगे, आओगे घर. वीडियो में तुमने देखा, आम जिंदगी देखी ना, कि कॉलेज है, किया, खत्म. असाइनमेंट वो आखिरी दिन ही होते हैं, उससे जल्दी असाइनमेंट कभी नहीं होते. तुम कितने भी फ्री रहो, कितना भी कुछ करो, तो दूसरों से आगे निकलना है अगर, तो तुमको कुछ ज्वाइन करोगे, कुछ सीखोगे, तो आपको फायदा मिलेगा उस चीज का. और ये चीज अच्छी है. मतलब हम तो टीम मेंबर्स हैं और हमने बहुत कुछ सीखा है. हमारा एक्सपीरियंस, हम तो सेकंड ईयर के हैं, तो दोनों टीमों में आपको सीखने का मिलेगा. आपको बाहर ऑल टेरेन व्हीकल्स कितनी अच्छी, मतलब टेरेन कितनी, या वो मतलब टेरेन्स में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा. कैसे गाड़ी बनाते हैं, क्या टेस्टिंग, क्या एबिलिटी गाड़ी कितना, आप पूरा को जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो भी ऑलरेडी कवर हो जाते हैं इस चीज में, आपकी कॉलेज के सब्जेक्ट्स. मैकेनिक, और एक और चीज की, अभी जैसे ट्रेंड के साथ अगर देखा जाए, तो इस समय ऐसा बोला जा रहा है कि 2025 तक 40 to 50% ऑफ व्हीकल मार्केट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल कवर करेगा. तो एक सरप्राइज एलिमेंट आपको ये दे दूं कि हमारी जो टीम जीएस रिसर्च है, उसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अप्लाई करने का सोच रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैकेनिकल वाला बच्चा इसको ज्वाइन करेगा और कुछ सीखेगा. नहीं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे हमारा एक डिपार्टमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, उसमें भी हम कई सारे सेंसर्स के साथ, कई सारे सर्किट्स, गाड़ी के हार्नेस सर्किट्स के साथ कई सारे चेंजेस करते हैं. उसमें आपको सीखने को मिलता है. फ्यूजेस के साथ खेलते हैं, वही चीज है. तो एक नॉर्मल लाइफ से अच्छा तो आप कुछ सीख के, कुछ करके अपनी इंजीनियरिंग सफल बना लो, तो क्या चाहिए. आप किसी भी टीम के मेंबर से पूछिएगा, आपको कभी वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं टीम में रह के रिग्रेट किया हूँ. और आपको जो भी जानकारी है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा. और आपको कुछ भी अगर डाउट हो तो आप यूट्यूब पे अपने मैसेज लिख सकते हैं नीचे चैट में, चैट देख. एंड बाय द वे कुलदीप, यू रिमेंबर जब अपन ने ज्वाइन किया था तो अपना एक मेजर क्वेश्चन देता था कि इससे हमारा सीजीपीए तो अफेक्ट नहीं होगा. तो उसके लिए लाइक बाहर में ही हमारे पास एक एग्जांपल है. लास्ट ईयर के हमारे एक सीनियर थे, उनका क्यूमुलेटिव सीजीपीए ऑफ द एंटायर 4 years ऑफ हिज बाहर जर्नी वाज 8.2 समथिंग लाइक दैट, एवरेज सीजीपीए. एंड ऐसा ही एग्जांपल एक सुप्रा में भी है. सो आई डोंट थिंक सो कि सीजीपीए की प्रॉब्लम यहाँ पे है. if you're in Baha, तो meanwhile आप extra तो कर ही रहे हो, you're standing out of the crowd and you're also getting motivated, like that dopamine rush to be productive all the time. So now to wrap up the facts, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि एक टीम कंपटीशन, डिपार्टमेंट्स, इवेंट्स, प्राइजेस, विनर्स और लूजर्स से नहीं बनती. टीम बनती है तो लोगों से बनती है. और दोनों ही टीम में, बाहा और सुप्रा में, वी नीड यू गाइस. सो तुम्हें अब व्हाट्स, वाइज और हाउस तो पता है टीम जीएस रिसर्च के. सो नाउ वी वुड लाइक टू ऑफर यू अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल जर्नी एंड द एप्लीकेशन पोर्टल फॉर द रिक्रूटमेंट्स फॉर बोथ द टीम्स विल बी कमेंस्ड टुडे. उसकी लिंक्स शेयर कर दी जाएगी, so you guys could apply on that, and all the necessary details will be shared via the WhatsApp group that was created. So be ready, choose wisely, but most important, make sure to break the conventions and don't be idle. Free मत बैठ, just be productive all the time. Mainly I will like to clear that इन जीएस रिसर्च में 3 सेगमेंट है. एक जो बाहा है, जो ऑल टेरेन व्हीकल बनाता है, जिसका आपको पता भी होगा कि कंपटीशन पीथमपुर में होता है, आपने कभी सुना हो तो, और बहुत बड़ा इवेंट होता है. मतलब पूरा इंटरनेशनली टीम इसमें पार्टिसिपेट करती है. और
दूसरा इवेंट होता है फॉर्मूला स्टूडेंट कम्युनिटी का जो सुप्रा एसएई इंडिया है। ऐसा एक और इवेंट होता है फॉर्मूला भारत, मगर हमारी जो टीम है सुप्रा एसएई इंडिया में पार्टिसिपेट करती है कंपटीशन में। ये भी एक इंटरनेशनल इवेंट है, इसमें भी कई सारी इंटरनेशनल कॉलेजेस की, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की टीम आती है और करती है। और कई सारे पूछ रहे हैं कि एफई साइकिल का क्या, तो एफई साइकिल भी टीम जीएस रिसर्च का पार्ट है। वो एक कन्वेंशनल हाइब्रिड व्हीकल टाइप बनाते हैं, वो उनका काम अलग है। वो मेनली आईसी इंजन या फिर ऐसा कुछ यूज नहीं करते हैं, उनका इलेक्ट्रिक पे थोड़ा काम होता है। और हम भी जैसे बता रहे हैं कि हमारी टीम जीएस रिसर्च भी पूरी ईवी पे शिफ्ट होने का सोच रही है समय के साथ, क्योंकि ट्रेंड के साथ चलोगे तो ही रहोगे, नहीं तो मिट जाओगे। तो इसलिए I will like to tell you that कि you can join us और be a part of a team GS Racers। टीम GS Racers कॉलेज का भी बहुत अच्छा, बहुत सपोर्ट मिलता है कॉलेज से हमको। जैसे उबेद ने बताया कि हमको उससे एल्यूमिनाई मीट से बहुत सपोर्ट मिलता है, एल्यूमिनाई से। तो एल्यूमिनाई हमारे बहुत, जैसे उसने बताया, कई बड़ी बड़ी पोजीशन पे है एसजीएसआईटीज के एल्यूमिनाई, और कई बड़ी बड़ी पोजीशन पे टीम GS Racers के जो हमारे टीम मेंबर्स रह चुके हैं, वो भी आज कई बड़ी बड़ी पोजीशंस पे। तो इसलिए बहुत कुछ सीखोगे, बहुत गिरोगे उठोगे और कभी जीतोगे भी। Please join us। So now the ball is in your court। आपको अब चूज करना है कि मतलब आपको सुप्रा, फॉर्मूला स्टूडेंट और टीम बाहा में से किसको चूज करना है। We will share the details with you all, so you can choose one of the teams from there। So thank you for being a part of this orientation and the Q&A session will now begin। अगर आपको कुछ doubts हैं तो आप live chat section में YouTube की वीडियो पे डाल सकते हैं। We would like to answer that। Yes, Kayura Chan, nice name by the way। All three segments participate together in events। Yes, they all the three segments participate, but उनके events के जो timings होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे कि there is a gap of 6 months in Supra और बाहा के event participation का period, and epicycle का is also different। So the months that we participate in वो अलग होता है, but तीनों का participation एक year में होता ही होता है एक बार। There are some restrictions, जैसे हमारे पास वर्क स्पेस सिंगल है, तो इसीलिए तीनों टीम्स को एक एक टाइम पीरियड दिया जाता है जिनमें वो तीन टीम्स अपना इंडिविजुअल काम करती है, और सारे इवेंट्स उसी हिसाब से लाइन अप है पूरे ईयर में, कि जिस वजह से मतलब तीनों इवेंट्स के पहले अपना अपना काम कंप्लीट कर ले। और एक और चीज, आपने कई जगह पढ़ा होगा कि बाहा जो है वो BAJA लिखा है। सो मैं नेक्स्ट स्लाइड कर, ये असल में एक वर्ड है जो मतलब इंडियन वर्ड, इंग्लिश वर्ड नहीं है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बाहा ही है, मगर इसको लिखते हैं बाजा है। तो वो कई सारे बाहा बाहा कर रहे हैं, तो इसलिए इसका ओरिजिनेशन इंडिया का नहीं है, सो इसीलिए वहां जहाँ ये ओरिजिनेट हुआ था वहां पे उसको बाहा की तरह प्रोनाउंस होता है। सो दैट्स व्हाई डोंट कॉल इट बाजा, वो बहुत प्रोहिबिटेड है हमारे यहाँ। सो या इट्स बाहा। You are from IT branch, so am I able to be a part? Yes, you can be a part of कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट इज मोर देन वेलकम। इवन अभी करंटली जीएस रिसर्च में हर टाइप के स्टूडेंट है, फ्रॉम सीएस, फ्रॉम सिविल, फ्रॉम आईटी, फ्रॉम मैकेनिकल, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल। सो या जैसा कि अभी कुलदीप ने बताया था, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट अभी इंडिया में 2025 से काफी ज्यादा बूम पे आने वाला है। सो CSIT, EE, EI students, heads up, yeah, come on, there is a plethora of opportunities for you guys, so yes, you all are welcome here। The link to the Instagram page is in the description of this video, please go check it out। Someone asked it in the live chat section। मतलब तुम्हें अगर इस एक क्वेश्चन है, अगर इस क्लब को ज्वाइन कर लिया तो किसी और क्लब को ज्वाइन कर पाएंगे क्या, ऐसा? तो इस क्लब में सब चीजें अवेलेबल है, तो तुम्हें किसी दूसरे क्लब को ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बात तो ये है, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि फोटोग्राफी क्लब, हमारी गाड़ी की फोटो खींच देना प्लीज। और अगर आप आर्ट क्लब में हो, कोई दिक्कत नहीं, इधर पे भी आपका हम काम करवा लेंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं। सारा काम आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, जो आपको आता हो और जो आपको करने का बहुत मन हो। और अगर रही बात आपके डांसिंग क्लब और कल्चरल क्लब वाली, तो आप उसमें क्लब ज्वाइन नहीं कर सकते हो, पर
आप दूसरे जब उनके इवेंट्स होते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट्स इट। और एनीवे जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं वो काफी, हाँ कुलदीप प्लीज। नहीं तू बोल। जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं वैसे भी काफी पीरियोडिक होते हैं, वो कुछ टाइम के में ही एक बार होता है, लाइक 3 मंथली और 4 मंथली। सो यू डोंट एग्जैक्टली हैव टू जॉइन देम फुल टाइम। अगर तुम्हारी हॉबी है तो जब उसका इवेंट पास आ जाए यू कुड डेफिनेटली गो पार्टिसिपेट इन इट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी टीम से लोग करते ही हैं ऐसा, वी हैव सम गुड डांसर्स। सो किसी का डाउट है कि मतलब डिपार्टमेंट्स आपको सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस मिलेगा, लेकिन हाँ मतलब बिल्कुल आप जो डिपार्टमेंट्स आपको प्रिफर रहेंगे आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा अगर वो अवेलेबल होगा तो। हाँ ऑब्वियसली हम आपसे पूछेंगे कि आपकी प्रेफर्ड चॉइस क्या है, बट स्टिल हम आपसे एक छोटा सा टेस्ट लेंगे जिससे हम आपकी जो हमारे यहाँ पे सीनियर्स है, नॉट जस्ट सीनियर्स 4th ईयर के, उनके ऊपर जिन लोगों के भी इवन जॉब्स भी लगी हुई है, वो वर्किंग इन एक्चुअल इंडस्ट्रीज, वो आपके वर्क को असेस करके बताएंगे कि व्हाट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइस। सो डोंट वरी, जो तुम्हारी इंटरेस्ट का डिपार्टमेंट होगा आप काम उसी में करेंगे। And there's not just one department, there are secondary departments as well. Like if you're in management, chances are you would also be in some other department like transmission, so that you get the maximum out of Baha and Supra. And one more thing, इसमें CAE and MBD things like these are also there, जिसमें software सिखाते हैं। These software are also industry grade, तो जो वॉल्वो, आइशर, महिंद्रा, मर्सिडीज, ऑडी हैं वो भी यही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। सो या और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये जो इवेंट्स है इनमें आपको सबसे बेस्ट चीज मिलती है कि जो जैसे बाहा जो होता है, बाहा जब ऑर्गेनाइज होता है तो तब इवेंट के समय पे वहाँ बड़ी बड़ी आइशर है, महिंद्रा है, ये कंपनियां वहाँ आती है और आपका 3rd ईयर और 4th ईयर के जो भी होते हैं स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, उनका पेपर होता है BAT। ये बाहा के इवेंट में भी होता है और ये सेम चीज फॉर्मूला स्टूडेंट के भी इवेंट में होता है, तो आपको प्लेसमेंट का भी वहां से मौका मिल जाता है। अगर आप एबल हो तो आपसे प्लेसमेंट कोई छीन नहीं सकता। मेन बात है आपको एबल, वो आपको प्लेटफॉर्म देना। कॉलेज प्लेसमेंट होते हैं, आपके साथ 200 बच्चे बैठते हैं, ठीक है, मगर उनमें आप 200 बच्चों में आप अच्छे हो सकते हो, मगर वहाँ हाई लेवल कॉम्पिटिशन, वहाँ पैकेजेस भी अच्छी देती है कंपनियां उन टेस्ट्स में। तो आप someone is asking NCC don't allow you to join। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे कुछ सीनियर्स हैं जो NCC में भी है और इसमें भी है। बस ये है कि आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। आपको देखो सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। NCC में आप क्या टीम हम तो नाम ही बोल रहे हैं टीम GS रिसर्च, तो आपको वो भी सीखने को मिलेगा। फिर आप कुछ बोल रहे हैं सर इंटरव्यू भी होगा फॉर रिक्रूटमेंट। हाँ बिल्कुल, अब अगर इतने बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर बहुत बड़ा फर्स्ट ईयर, और आप अपने दोस्तों को भी ये जो डिटेल्स आएगी शेयर करना, उनको भी मौका मिलेगा। तो इंटरव्यू इसका होगा, वो तो कंफर्म है, क्योंकि हमको भी कुछ ही बच्चे चाहिए, सारे नहीं चाहिए। बस ये है कि आप आओगे अगर आप एबल हो तो बिल्कुल, और एबल हो आपको सीखना है तो आप आओगे। क्षितिज श्रीवास्तव, सर इंटरनल डिपार्टमेंट शिफ्ट कर सकते हैं क्या? क्षितिज, अगर तुम टीम में आओगे, तुम लायक हो, तुम सिलेक्ट होते हो, तुम अच्छा रिप्रेजेंट करते हो, एक तो तुम्हारा इंटरेस्ट किस डिपार्टमेंट में वो मैटर करेगा। फिर उसके बाद अगर तुम ठीक है अच्छा शो कर रहे हो, तुम डिपार्टमेंट अपग्रेड करना चाहते हो, या फिर तुमको नॉलेज है, अब है क्या डिपार्टमेंट भी अलग अलग हैं। जैसे आप मान लो आप इंजन है और आप व्हीकल से रिलेटेड, डायनामिक से रिलेटेड कुछ है, तो उसमें भी आप स्विच करना चाहोगे तो आपके नॉलेज के हिसाब से आपको मौका दिया जाएगा। And someone asked कि how to choose between the 3 teams। So यार ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सी टीम के बारे में सोच के सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। एक ऑल टेरेन व्हीकल, एक फॉर्मूला कार, या फिर FE साइकिल। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, जस्ट गो विद योर गट फीलिंग मैन। और अगर कुछ भी आपको डाउट आता है इस चीज से रिलेटेड तो आप ग्रुप में बिल्कुल फ्री टू है कि आप फ्री हैं, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कोई भी सवाल कि सर मैं इसका पर्सनली फोन कर लेना ग्रुप एडमिन जो भी है कि सर मेरे को समझा दो कि सर सुपरा क्या है, बाहा क्या है। तो और कई सारे पूछे क्या ना सेकेंड ईयर ज्वाइन,
अगर टीम में जगह है और ठीक है सेकेंड ईयर वाला बंदा अगर उस लायक है कि उसका नॉलेज है कि उसको टीम में ऐड कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल सेकेंड ईयर को हम ज्वाइन कर लेते हैं, मगर अभी फर्स्ट ईयर के रिक्रूटमेंट के बाद ही प्रोसेस होती है। व्हाट अबाउट यान? अली राजा मोहब्बत इज सेइंग व्हाट अबाउट यान? हाँ, यान भी एक टीम जीएस रेसर्स का हिस्सा है, मगर वो अभी ठीक थोड़ा थोड़ा मतलब इतना बहुत ज्यादा वो करता नहीं, रिक्रूटमेंट भी वो थोड़े से लेट करता है। हाँ, अगर आपको देखो एरोडायनामिक्स, यान मेनली है एरोडायनामिक्स से रिलेटेड, और एरोडायनामिक्स आप टीम जीएस रिसर्च में भी सीखोगे, आपको फॉर्मूला स्टूडेंट में भी इसका मौका मिलेगा एरोडायनामिक्स सीखने का, तो ये आपकी चॉइस है। अंकित इज आस्किंग कुछ भी नहीं आता तो फिर भी ज्वाइन कर सकते हैं क्या? भाई हमको भी नहीं आता था। एग्जैक्टली मतलब आप यहाँ पे स्ट्रीम में इसलिए आ रहे हो ताकि आप सीख पाओ। हमें कोई मतलब अगर कोई दिक्कत नहीं है कि आपको पहले से बहुत ज्यादा नॉलेज हो, बिल्कुल हाई लेवल वाली, आप तो आईआईटी वाले हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं चाहिए हमें। जो भी है आप आओ, हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे। दिव्यांग एट द एंड Do we need any type of technical knowledge for recruitment? और बेसिक टेक्निकल नॉलेज मतलब बेसिक चीजें आनी चाहिए बस आपको। बेसिक फिजिक्स इज रिक्वायर्ड, हाँ, लाइक बेसिक फिजिक्स मैथ्स मतलब बस, उससे ज्यादा टेक्निकल चीजें अगर आपको नहीं आती तो कोई इश्यू नहीं है, वो हम सिखाएंगे आपको। और also do it till the end because we have a surprise video of Baha SAE national champion that is Audvik। हमारी गाड़ियों के स्पेसिफिक नाम होते हैं, so 2014 की जो Baha SAE की विनर थी उसका नाम था Audvik, so do wait for that। ये आयुष इज आस्किंग सर ये किस बेसिस पे आप टीम में लोगे हम लोग को ऐसा? तो वो तो आपके मतलब कॉन्फिडेंस रहेगा आपका कि कितना इंटरेस्ट है उस टीम के लिए आपको, मतलब कि मतलब आप ऐसे नहीं कि आप बस आए और फिर नहीं समझ आए तो आप छोड़ के चलेगा। आपके पास सीखने की वो होना चाहिए कि हाँ यार कोई सिखा रहा है सामने वाला तो आप सीखो उसको, ऐसा। और कुछ न कुछ सीखने, कुछ न कुछ पाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगी। और कई सारे जैसे पूछ रहे हैं कि सर हाँ एक है कि एनी रिक्वायरमेंट फॉर कंटेंट राइटर। हाँ, कंटेंट राइटर हम बिल्कुल जैसे बताया कि पैसों की बहुत जरूरत होती है, तो हम कई सारे जो इंस्टीट्यूशंस है उनको फंडिंग के लिए हम उनके पास अप्रोच करते हैं, तो उनको मैसेज ड्राफ्ट करना, उनसे कांटेक्ट रखना। और कंटेंट राइटर हो तो स्पीकिंग मतलब कम्युनिकेशन एबिलिटी भी अच्छी होगी, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे पास जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसमें इस टाइप का मौका आपको मिलेगा। डेफिनेटली यार, कंटेंट राइटर्स की काफी नीड होती है प्रेजेंटेशन पीरियड में। सेल्स प्रेजेंटेशन देने के लिए 3 लोग जाते हैं, सो इट आल्सो एनहांसेस योर कम्युनिकेशन एबिलिटी। प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आपको यहाँ पे बहुत इंक्रीज मतलब इवॉल्व करने को मिलती है कि अगर आपको नहीं आता तो भी आपको खड़ा कर देंगे कि आओ बोलो, तो बोलना तो पड़ेगा। और ये भी है समय के साथ साथ आप फर्स्ट ईयर में अगर ज्वाइन करते हो तो आप एक सिंपल स्टूडेंट रहोगे, मगर ये गारंटी है कि आप फोर्थ ईयर तक जब तक निकलोगे तो ये तो है कि आप कुछ बन ना पाओ मगर पक्का इंजीनियर। अगर आपने कॉलेज में मैनेज कर लिया तो आप बहुत अच्छा इंजीनियर बन के निकलोगे, आप दुनिया से बहुत आगे रहोगे। तो ये आपके साथ वाला होगा, उससे कंपेयर कर लेना, ये बात लिख लो, बाद में ध्यान आएगी। रिटर्न किस टाइप का होगा ये तो सब आपको ग्रुप पे आगे जो भी मैसेज होगा वो कन्वे कर देंगे। बाकी और कुछ भी डाउट हो तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर लो जो ग्रुप एडमिन है उसमें, उनसे।